ये स्टार्ट होना है, ठीक। 2 BHK मतलब 2 बेडरूम का था। 2 बेडरूम। When we will be open to the start pro, a grid will be open, है ना, ठीक है। Setup total information of the project you will be input here, right? Go to geometry when you want to draw या when you want to make a drawing या design. So first one thing, go to geometry and click through the mouse, okay, and close it. A frame is drawn. Select this for translational repeat. If you want to repeat या copy in x direction and z direction and y direction. So first one thing, select to the your frame या select your object. Go to translational repeat x, y and z. X, y and z for copy to your object. Go to translational repeat. Select to the translation repeat, and where you want to repeat your frame, so you will be select to the global direction, okay. In x direction, number of repetition step, how many steps, number of 3 steps, 3, 2, 4, ठीक है। As per your requirement you will be input your, okay, number of step, and default step spacing is 5 meter. You also given 5 meter, na? If span will be changed, so you will be select default spacing is also will be changed, है ना। Select to the link step, open base. Why we are selecting to the link step? जब आप एक फ्रेम को 2-3 फ्रेम बनाते हैं तो वो उसको एक दूसरे से अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए you will be select to the link step and open base. Why we are selecting to the open base? क्योंकि always you see ग्राउंड पे ओपन, वाई में बिल्कुल, होता है ओपन, ओके, राइट, जेड में भी ओपन बेस होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन रिपीट इन एक्स डायरेक्शन। सर ये जो ग्राउंड पे ओपन बेस एक्स में भी ग्राउंड पे ही रहेगा ना, अगर एक्स एंड जेड, वाई में नहीं होता है। और अगर अगले फ्लोर पे जाते तो उसमें एक्स में भी ओपन बेस नहीं रहता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना जेड में रहेगा, बस एक्स Select और to this. Z में ग्राउंड में। Go to translation repeat for z direction. Select to the z direction. Number of repetition 4 meter, 4.5 meter as per your requirement. Link step and open base. Okay कर दिया, ठीक है। Go to front view. देखिए ये आपके जितने क्यूब दिख रहे हैं, येलो कलर जिस फेस पे दिख रहा है वो आपका व्यू है। फ्रंट, बैक, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम, आइसोमेट्रिक। ऑलवेज आप जो है आइसोमेट्रिक व्यू में रहते हैं, ठीक है। गो टू फ्रंट व्यू फॉर सेलेक्ट टू द योर फ्लोर। सेलेक्ट हाउ यू विल बी सेलेक्ट टू द योर फ्लोर। फर्स्ट वन, लेफ्ट क्लिक थ्रू द माउस and drag cover to all floor, okay. Go to isometric view, you can see, ठीक है। क्यों शायद जी जी। then go to translation repeat, select to y direction, number of repetition, 4, 5. how many floor are there, 5 floor. Default step spacing 3 मीटर, by default 5 meter, but floor to floor height in case of the y direction कितनी होती है, 3 मीटर स्टैंडर्ड होता है। तो आपने 3 लिया, लिंक स्टेप, ओनली लिंक स्टेप, ओके।
क्लियर है? ये नीचे से एक छत तक 3 मीटर। जी, फ्लोर टू फ्लोर अच्छा 3 मीटर स्टैंडर्ड है। जी ठीक है, क्लियर है? जी 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 क्लियर। ट्रांसलेशन रिपीट क्लियर है? जी बिल्डिंग बन गई तेरे। 3D में देखने के लिए गो टू रेंडर्ड व्यू, लॉन्ग प्रेस लेफ्ट क्लिक करके इसको आप रेंडर को घुमा के देख सकते हैं। अभी आपका फ्रेम बना है। साइज ऑफ द कॉलम, साइज ऑफ द बीम आपने इनपुट नहीं किया है, ठीक है। इसका मतलब प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे इसमें। हाउ यू विल बी अप्लाई टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलम, साइज ऑफ द कॉलम एंड साइज ऑफ द बीम। गो टू जनरल, go to general. Always when you will be start your project, always ये स्टेप आप फॉलो करेंगे। फर्स्ट वन गो टू सेटअप, देन ज्योमेट्री, देन स्टैंडर्ड जनरल, ठीक है। फॉर apply to the property, apply to the cross sections of the size of the beam and column. Go to general and select to the property. Okay, select to the property, go to right side, a window will be open when you are clicking on the property. Yes. Select to the define property, circular, rectangular, जो आपको चाहिए। So आपने क्या सेलेक्ट किया? rectangular property. YD is the depth of the beam and ZD is the width of the column, width of the beam and depth of the beam, YD दोनों बीम में से 0.45, ठीक है। Yes, sir. 0.45 depth of the Beam. 0.23 width of the beam, add। अभी आपने प्रॉपर्टी बनाया। जैसे आप जो है कॉलम, बीम, स्लैब की कास्टिंग जब होती है, कास्टिंग समझ रहे हैं? कितने मीटर की डेप्थ है? कास्टिंग समझते हैं कि नहीं? कास्टिंग का मतलब ये होता है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करें, जब आपकी मिक्सर मशीन आके खड़ी होती है, लिफ्ट वाली हो या ड्रम वाली जो भी हो, तो वो मिक्सर मशीन जो खड़ी होती है उसमें रोड़ी, बदरपुर और आपका सीमेंट, वाटर मिक्स करते हैं ना, तो वो मिक्स तैयार होता है। वो मिक्स तैयार तो होता है, उसको फिर अप्लाई ले जाके छत पे, बीम में, कॉलम में करते हैं, ढलाई बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अभी हमने मटेरियल ये बनाया है, ऐड करते हैं तो ये मटेरियल यहाँ बन के रख गया। अब इस मटेरियल को इस कॉलम या बीम में अप्लाई करेंगे। अभी बना है सिर्फ, अभी आपका क्या बना है ये आपको समझना खुद होगा। ये किस चीज़ का बना है आपने? बीम का। अब यहीं पे कॉलम का आप बनाते हैं, ठीक है। 0.33, 0.3 सर ये वैल्यू में ऐसी एज्यूम कर लेते हैं कि कोई कांस्टेंट हो। जी देखिए, 300 IS 456 के हिसाब से मिनिमम यू विल बी प्रोवाइड टू द कॉलम 300 बाई 300, 300 बाई 300, ठीक है। और बीम बीम आपकी 230, 300 0.23 जी। और ऐड किया, 0.3 क्लोज किया, मटेरियल आपका कंक्रीट है, क्लोज किया। असाइन टू द प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन सेलेक्ट टू द बीम साइज, गो टू सेलेक्ट X एंड Z। क्या होता है? बीम होता है। गो टू बीम पैरेलल टू X, गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू Z। सेलेक्ट हो गया। असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस, क्लियर है। देन सेलेक्ट टू द कॉलम प्रॉपर्टी, देन गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू Y, देन assign to selected beam, assign and yes, क्लियर है। मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसलिए बताया है, इससे पहले जब आप सिर्फ विदाउट प्रॉपर्टी असाइन किए हुए 3D में गए थे, 3D रेंडर्ड व्यू में सिर्फ लाइन दिख रही थी, लेकिन जब आप आफ्टर अप्लाइंग टू द प्रॉपर्टी व्हेन यू विल बी गो रेंडर्ड व्यू, तो आपके साइज ऑफ द कॉलम, साइज ऑफ द बीम आपको दिखाई देंगे, विजुअलाइज आपको समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ से बाहर आने के लिए
सेटअप पे क्लिक कर दीजिए, ज्योमेट्री पे क्लिक कर दीजिए, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये देखिए नोड नंबर 1 2 3 ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फॉर शो टू द नोड, शो टू द नंबर ऑफ नोड, शिफ्ट N। अच्छा, फॉर हाइड टू द नंबर ऑफ नोड, शिफ्ट N अगेन। ठीक है, ये जो आपके नोड दिखाई दे रहे हैं, शिफ्ट सर इसको नंबर ऑफ नोड के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट N फॉर शो टू द नोड, फॉर हाइड टू द नोड, शिफ्ट N। ये जितने मेंबर हैं चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल मेंबर इज बीम, वर्टिकल इज कॉलम। फॉर शो टू द मेंबर, शिफ्ट B। ओके, ठीक है। बी से क्या सर? मेंबर, मेंबर मीन सर? मेंबर मीन्स कॉलम या बीम। अच्छा अच्छा, हॉरिजॉन्टल मेंबर इज बीम एंड वर्टिकल मेंबर इज कॉलम, शिफ्ट B। ओके, जी जी समझ में आ गया? जी जी यहाँ तक समझ में आ गया? ये देखिए सिलेक्शन कर्सर है लेफ्ट साइड में। अगर आपको नोट सेलेक्ट करना है, गो टू नोट कर्सर, नोट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, मेंबर आपको सेलेक्ट करना है तो बीम कर्सर में जाएंगे, बीम सेलेक्ट होगा। कंटिन्यू सिलेक्शन के लिए यू विल बी प्रेस टू द कंट्रोल की, लॉन्ग प्रेस टू द कंट्रोल की। तक दबा के रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है? For after applying to the property, size of the column, size of the beam, go to general, after property select to the support. You know what is support? Different types of support. Hinge Fixed support, hinge support. Hinge support is also pin support. Yes, sir. पिन सपोर्ट भी कहा जाता है इन सपोर्ट Roller को, support. रोलिंग सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट। तो पता है फिक्स ना? सपोर्ट रहता होगा ये तो। So fixed support will be there. Fixed support, go to support, then select to the create, select to the fixed, add support। यहाँ पे आपका बन गया है। इस सपोर्ट को अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? सेलेक्ट टू द योर सपोर्ट, क्रिएटेड सपोर्ट, गो टू फ्रंट व्यू। नीचे के नोड आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऑलवेज गो टू आइसोमेट्रिक व्यू फॉर सी टू द टोटल नोड्स आर सेलेक्टेड, इसलिए हम आइसोमेट्रिक व्यू में आए हैं। असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन, यस, कोड लग गया। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? क्लियर है, ठीक है। सपोर्ट तक मैं आपको जी बताया हूँ। सेव